बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Ladies and gentlemen, distinguished guests, Assalamu alaikum wa rahmatullah. सबसे पहले तो thank you Amjad Saab for organizing such a prestigious event. This is basically the second time we are celebrating the CPAC within the same hall. Or Alhamdulillah, we have been collaborating with Amjad Saab, and he is doing tremendous job in promoting the Chinese culture through his China Window activities. They are providing, Chinese language services, and also, they are also helping students to get oriented with the Chinese culture and so related things. Now coming to, apologies, I came late, but I was in a meeting at the P&D department regarding a tourism project, the one just Bakhtiar Sahib mentioned. I heard a lot of things about the regulatory issues and the issue that you faced during your intervention. Before my meeting with the P&D, I was having a meeting with a Chinese investor. We are bringing a new technology in the mining sector. My suggestion to him was the same which I'm going to suggest to you, and my request, I would expect the same from you to communicate this with other Chinese investors as well. Usually the Chinese business community or any international business community, they face challenges of NOCs for traveling in KP. KP has a different dynamics compared to other provinces, but there are Chinese companies that we have attracted and we have facilitated them from day first in Pakistan in KP. They are not having those problems because we are here to give them a single window facilitation. KP Board of Investment and Trade is established to provide, I would say, a one-stop shop for investors if they are interested in investment. So my suggestion and to your company, and I would expect that you circulate this message with your Chinese community, business community as well, that whenever they are planning to invest in Khyber Pakhtunkhwa, the first visit they should do is the Board of Investment Office. You will have a dedicated team that will facilitate you in your NOCs, in your registrations, in your any kind of endeavors. Even we would provide you with business community with whom you can come in a joint venture, enter into an agreement with the local community, because it is always a big challenge for Chinese citizens to visit their investment sites. Mostly the Chinese are interested in the mining sector, and the mining reserves are all scattered on the the borderline or the tribal areas, and which are hard to enter for foreigners. हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा की बिजनेस कम्युनिटी है उनके लिए भी ये एक मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो रेगुलेटरी रिजीम है, ये हमारे जो कवानीन है ये 1900 सदी के कवानीन अभी तक चल रहे हैं, और किसी ने इस पे तवज्जो नहीं दी कि इसमें जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आजकल प्रैक्टिकल एप्लीकेबल ही नहीं है, वो हम हटा क्यों नहीं देते। किसी ने ये तकलीफ नहीं की। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस पे हमें पूरा कवर दे रही है, हमें कंप्लीटली सपोर्ट कर रही है कि हम इस रेगुलेटरी रिजीम को सिंप्लीफाई करें। और इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि हमने 33 जो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के, हमने उन सब की मैपिंग एक्सरसाइज की, और जो रूल्स बिजनेस कम्युनिटी को फेस करने होते थे वो हमने आइडेंटिफाई किए, और उन 170 रेगुलेशन फिर सामने आए। उन 170 रेगुलेशन में आज तक हम 32 रेगुलेशंस को ख़त्म कर चुके हैं या सिंप्लीफाई कर चुके हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी, और मज़ीद पे भी हम काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का हमेशा से ये किरदार रहा है, हम मुख्तलिफ इवेंट्स भी करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, और उसमें हम बिज़नेस कम्युनिटी, हमारी जो लोकल बिज़नेस कम्युनिटी है उसको हम ये अपॉर्चुनिटी, ये मौके फराहम करते हैं कि वो आएँ और इंटरनेशनल और नेशनल बिज़नेस कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हो जाएं।
आज की जो मैं चाइनीज़ के साथ मैंने मीटिंग की तो उसको मैंने एक लोकल बिजनेसमैन के साथ कनेक्ट किया, तो एक किस्म का विन विन सिचुएशन क्रिएट हो रही है। हमारे लोकल बिजनेसमैन भी फ़ायदा उठा रहे हैं और फॉरेन इन्वेस्टर भी फ़ायदा उठा रहे हैं, और हमारे मुल्क को एक खतीर किस्म का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। तो इस सारे इंटरवेंशन का, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का मकसद ही ये है कि हम खैबर पख्तूनख्वा की बिजनेस कम्युनिटी को, नेशनल बिजनेस कम्युनिटी को और इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी को एक बिजनेस इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें। और इसमें आप लोगों की हमें सपोर्ट भी चाहिए। सैफ साहब, बैरिस्टर सैफ साहब बैठे हुए हैं, हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं, और हम जब भी अपने प्रोजेक्ट के लिए हम उनको दावत देते हैं तो ये हमारी दावत नहीं ठुकराते। आपका सर अगेन बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपको हम बार बार तकलीफ देंगे, क्योंकि आपकी प्रेजेंस हमें भी हौसला देती है, बिजनेस कम्युनिटी को भी हौसला देती है, और जनरल पब्लिक को एक बेहतरीन मैसेज भी कम्युनिकेट होता है। तो अगेन अमजद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दिस जॉइंट एफर्ट्स विद चाइना विंडो, और जितने भी हमारे खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है और प्राइवेट सेक्टर है, हम उनके साथ इंशाल्लाह मिलकर बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।